morning, children. This is Jiten Kumar Tiwari from Kendriya Vidyalaya, Ordnance Factory, Katni. Welcome back in online class of Kendriya Vidyalaya Sangathan Regional Office, Jabalpur. After a gap of summer vacation, you are here with new energy, with great energy. Now we discuss earlier, Mr. S.K. नायक सर ने already आपसे arithmetic progression discuss किया है. You know what is the arithmetic progression? With the help of very nice video, Mr. Naik has already discussed. Now we recall the arithmetic progressions once again, and we discuss the problem of exercise 5.1 and 5.2. What is arithmetic progression? Dear children, you remember, if you have A is any number, A is a constant, real number, D is another number, you add D with the first term. This is the second term of the progression. Progress करते जाना है. इसमें D add करिए, D, A plus D plus D, D plus D means 2D. So it becomes 2D. A plus 3D and so on. What is this? You see, this is the term number 1. A plus 0D बोल सकते हैं क्या? Yes, A plus 0 into D. That is A plus 1 minus 1 into D. This is the first term. C, what is this? Second term क्या है जी? A plus D. It is written as A plus 2 minus 1 into D. 2 minus 1 into D, that is 1D. 1 into D, that is D. Similarly, you say, sir, what is the third term? A plus 3 minus 1 into D. 3 minus 1 into ये term 1 था, ये term 2 है, ये term 3 है. Gradually आप लिखते चले जाइए. So what happen if I am asking you what is the fifth term? You say, sir, A plus 5 minus 1 into D. I am asking what is the 100th term? You say, sir, A plus 100 minus 1 into D. Then I am asking what is the nth term? You say, sir, A plus n minus 1 into D. This is the formula for nth term of the AP. जिस नंबर की टर्म आप चाहें वो कैलकुलेट कर सकते हैं. व्हाट इज ए हियर? ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म. ए को क्या बोलते हैं जी? फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी. एंड व्हाट इज डी? कॉमन डिफरेंस. डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. हाउ यू कैलकुलेट दिस कॉमन डिफरेंस, डियर चिल्ड्रन? यू रिमेंबर, सर ने बताया था आपको. Second term minus first term, otherwise third term minus second term. That is difference between two consecutive terms of progression. That is, यदि D calculate करना होगा तो आप second term से first term minus कर दें, otherwise third term से second term, otherwise fourth term से third term and so on. ये सेम होगा, यही आइडेंटिफिकेशन भी होगा whether the given progression is an AP or not. So whenever we want to check whether the given progression is an AP, how we will check? We check with the help of their common difference. Their common difference remains same. Clear? Okay. On the basis of this, we start the exercise of the test book 5.1. See the first question of exercise. देखें उसको क्या लिखा है. बुक लीजिए, पेन लीजिए और आप ट्राई करिए क्या बोल रहा हूं. फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें. एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है. व्हाट इज द प्रॉब्लम? यस, रीड इट. Does the list of a number involved make an arithmetic progression? First, the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for
your question, it is given for first kilometer the taxi fare is ₹15. टैक्सी में आप गए, बैठे और आपको चलना है, तो फर्स्ट किलोमीटर जैसे ही मीटर ऑन किया तो उसमें ₹15 आ गया। और सब्सिक्वेंट जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट किलोमीटर जैसे आपको 2 किलोमीटर की जर्नी करनी, तो 15 तो फिक्स है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, नेक्स्ट किलोमीटर के लिए +8 और लगेगा, मीन्स क्या आएगा जी 23 लगेगा। थर्ड मीन्स 33 किलोमीटर का जर्नी करना है, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 फिक्स है और 2 किलोमीटर के लिए 2 into 8 दैट इज आपको 15 + 16 दैट इज 31। ग्रेजुअली आप बाकी चेक करते जाइए। मीन्स क्या हुआ सर, द प्रोग्रेशन इज 15, 23, 31। नेक्स्ट क्या आएगा बताएंगे? यस 39, नेक्स्ट 47, नेक्स्ट यस 53, 50, 4, नेक्स्ट 55, see the first term is 15, the difference of consecutive terms is 8, so yes it is in AP with first term is 15 and common difference 23 minus 15 or 31 minus 25 and so on. This is an AP. Got it? So given situation, you read the problem and try to make the progression. What are the numbers? In the given problem, the taxi fare for first kilometer is ₹15, so I have to say for first term is 15. When the journey made by you by 2 kilometer, then 15 + 8, क्योंकि each kilometer subsequent आपको ₹8 पे करना है, तो 8 हो गया। फिर 2 किलोमीटर के लिए सिमिलरली, so it is an AP. Got it? Doubt? No. Similarly, try to solve the second one. Read the problem, make the progression, try करिएगा, सेम सिचुएशन आप बनाइएगा। यस, फर्स्ट का सेकंड देखें बेटे, सी दी सेकंड प्रॉब्लम। Read it. the amount of air present in a air cylinder. When a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. Suppose initially the air inside the cylinder is V cubic unit volume. अब आपने उससे वैक्यूम पंप से सक किया, एयर को सक किया, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन वो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एयर सक कर लेता है। सो व्हाट इज द T2? फर्स्ट स्टेप में आपका V था माइनस 1/4 ऑफ V, 1/4 ऑफ V दैट इज 1/4 V। एलसीएम ले ले, एलसीएम लेते आता आपको 4V माइनस V दैट इज 3V/4। अब ये हो गया साहब, एक बार आपने सक किया 1/4 ऑफ दी ओरिजिनल। अभी थर्ड, अब क्या होगा सर, 3V/4 आपके पास था सेकेंड में, माइनस 1/4 ऑफ प्रीवियस वन दैट इज T2 दैट इज 3V/4। इट मीन्स दैट 3V/4 minus 1/4 into 3V/4. Solve it, then you get 12V minus, yes, 12V minus 3V/16 that is 9V/16. Got it? 3V/4 कॉमन लेके भी आप कर सकते थे, यहां आप 3V/4 कॉमन ले लेते, 1 minus 1/4 का इंटू होता, 3V/4 into 1 minus 1/4 that is 3/4, so 9/4, 9/16 V आ जाता सर। Got it? Now see what happened. The progression says first term is V, second is 3V/4, third is 9V/16 and so on.
What is the first term here? V. D. Common difference. Second term upon first term. Second term minus first term. That is minus V by 4. LCM लिया. LCM लेते शायद आता है आपको. Upon 1 लिखा. 3V minus 4V upon 4. That is minus V by 4. अब अगेन ये तो T1, T2, T3 सेकेंड टर्म से मैंने फर्स्ट टर्म माइनस किया. अब बेटे थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस करिए. 9V by 16 minus 3V by 4. टेकिंग LCM 16 क्या आएगा? 9V minus 12V. 9V minus 12V. It is minus 3V by 16. So see whether these two values are same. First is T2 minus T1. Next is T3 minus T2. Whether these two values are same? No. Here minus V by 4. Here minus 3 by 16. So this is not in AP. Why it is not in AP? Since common difference is not same. As you know, whenever you have a arithmetic progression, their common difference will be same. So it is not in AP. क्या आंसर लिखोगे सर? It is not in AP. Got it? Why? Since T2 minus T1 does not equal to T3 minus T2. रीजन लिख देना है आपको. Similarly, you try to solve third one, fourth one. I think you are able to solve them. आप उनको कर लेंगे. Now, see the question number second. Second, third आपको करना है. और डाउट हो तो आपको पोस्ट करना है. आप डाउट लिखिएगा तो नेक्स्ट क्लास tomorrow we will discuss the remaining doubts, including the summation of n term of arithmetic progression. सम के क्वेश्चंस दैट इज 5.3 5.4 के साथ आपके डाउट भी डिस्कस करूंगा. फर्स्ट का थर्ड फोर्थ असाइनमेंट आपको करना है वो. प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट. नाउ सी दी क्वेश्चन नंबर सेकेंड. अभी हमने क्या किया? अभी हम लोगों ने चेक किया वेदर द गिवन सिचुएशन और गिवन प्रॉब्लम गिव्स द प्रोग्रेशन, दैट प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट. हमने ये चेक किया. अब हमको क्या करना है? सी द प्रॉब्लम इज, रीड इट. Write first four terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows. A is 10, 10. D is 10. D is also 10. Yes. Both are 10. According to your question, it is given that the first term of the AP is 10, common difference is 10. ये given है. अब हमको ये, दिस इज नॉट दी मैटर ऑफ जस्टिफिकेशन. हमको ये नहीं बताना वेदर इट इज एन एपी और नॉट. हमको केवल ये एपी की टर्म्स लिखनी है. गॉट इट? एपी की टर्म्स कैसे लिख पाइएगा? यू रिमेंबर एपी इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d. डी ऐड होते जाता है. व्हाट इज ए? 10. अब क्या ऐड करना है जी? डी कितना है? 10. 10 प्लस 10 क्या आएगा? 20. या वेरी गुड. फिर 10 ऐड कर दीजिए 30. फिर इसमें 10 ऐड कर दीजिए 40. फिर 50. आप तो कितनी टर्म भी लिख सकते हैं. हाउ मेनी टर्म्स यू वांट टू राइट? 4 टर्म्स. सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपने फिर तक लिख दिया. दिस इज दी. So these are the very easy problems. I think you are able to write them. One of them is given. A is something and D is 0. I think there is a problem. कौन सा क्वेश्चन है? A equal to minus 2. क्वेश्चन कौन सा है? Second. A equal to Minus 2 and Minus- common difference 0. D equal to 0. It is very interesting question dear. 1 mark short answer type questions में ये आता है. A -2. अब 0 ऐड करिए सर. -2 0 ऐड करिए. -2 -2 -2. C, it is an AP. It is an AP. आपने क्या किया? फर्स्ट टर्म -2 लिखा. A प्लस D, D 0 ऐड किया. -2 प्लस 0 क्या आएगा? 0. नो, -2.
फिर 0, फिर 0, फिर 0. This is an AP. Similarly, you have to write remaining one. अब मैं आपसे कह रहा था कि सर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे पूछता है? शॉर्ट आंसर टाइप में. इफ यू हैव द फॉलोइंग प्रोग्रेशन वेदर इट इज एन एपी, ऐसा लिखा, राइट द फर्स्ट टर्म इन कॉमन डिफरेंस. तो सब आप इसको एपी बोलिएगा. a is 5 and common difference is 5 minus 5, that is 0, and common difference का वैल्यू 0 हो सकता है. Clear? Remember, it is an AP. Similarly, you have to solve the remaining one. वो आप कर सकते हैं. Now see the question number 3rd. Same problem, very easy, dear children. First, second मैंने कर दिया second का. अब आपको कॉपी पर third, fourth करना है. इसकी कैसे करना है? You got it? A और D की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते जाइए और उनको कैलकुलेट करते जाइए. वेरी इजी सर. 10th क्लास का मैथमेटिक्स बहुत इजी है. यस. See the question number 3rd. Yes. For the following APs, write the first term and the common difference. Yes. First, 3, 1, minus 1, minus 3, and so on. It is given, this is an AP. You want to write the first term and their common difference. First term मतलब जो पहली पोजीशन पर है. क्या दिखाई दे रहा है आपको फर्स्ट पोजीशन पर? फर्स्ट टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं? And D stands for common difference. क्या सर? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. What is the second term? 1. First term 3. 1 minus 3, that is minus 2. अभी वो कुछ और तो उसने बोला नहीं. फाइंड द 100 टर्म और सो कोई टर्म नहीं पूछ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चंस जो होंगे वैसे ही होंगे. सो आई थिंक थर्ड वाला भी आपसे आ जाएगा. ट्राई टू सॉल्व द रिमेनिंग. यस. थर्ड का सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप इसको ट्राई करेंगे. देयर आर 4 क्वेश्चंस. सी दी प्रॉब्लम नंबर 4. आप थर्ड का 4 देखिए. डेसिमल में है. बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक कमिट करते हैं. क्लास 10th के बच्चे डेसिमल के कैलकुलेशन में जनरली क्लासेस में मैंने देखा डेसिमल का कैलकुलेशन करते समय बच्चे कंफ्यूज होते हैं. यस. थर्ड का 4 बोलिए. Which of the following are APs? थर्ड का 4th क्वेश्चन बोलिए. 0.6, 1.7, 2.8, 3.9. 0.6, 1.7, 2.8, 3.9. What is the first term? A equal to 0.6. D equal to second term minus first term, that is 1.7 minus 0.6. अब जैसे यहां आया डेसिमल का कैलकुलेशन आया बच्चे के हाथ पे. बहुत सारे बच्चे तो कर लेते हैं. मोर देन 60% children are able to solve such type of decimal, but there are some children. आप ऐसा लिख लिया करें और माइनस करें. 7 minus 6, 1.1, that is 1.1. अब नेक्स्ट टर्म आप चुपचाप चेक कर लें बेगर बोलिए. 1.7 में 1.1 ऐड करो तो 2.8 आएगा. 2.8 में 1.1 ऐड करिए तो 3.9 आएगा, एंड सो ऑन. सो दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व द रिमेनिंग वन. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बेसिक कंसेप्ट बेस है. केवल आपको ये बताना है कौन सा प्रोग्रेशन. यस. रीड करिए. क्या लिखा? Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference and write 3 more terms. Dear children, in previous question it is given that the given progressions are arithmetic progression. But in this problem, question number 4, it is not given the progression is arithmetic progression or not. You have to decide. How you will decide? कैसे डिसाइड करिएगा? प्रोग्रेशन को ऑब्जर्व करिए. देखिए कि उसका कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है, तभी वो अर्थमेटिक. अब यदि वो प्रोग्रेशन है तो जितनी टर्म्स दी हैं उसके बाद आपको नेक्स्ट 4 टर्म्स और लिखनी है. नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स आपको लिखनी है. सो रीड द फर्स्ट प्रॉब्लम. 2, 4, 8 and 16. 2, 4, 8, 8, 16 and 16. so on.
it is given. You know, a equal to 2. d आपने निकालने का, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकाल. अभी हम इसको d नहीं बोल सकते, we do not know whether it is an AP or not. 4 minus 2 क्या आया? 2. अब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म t1, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म. सो मैंने t2 माइनस t1, 4 माइनस 2 2 आया. अब थर्ड टर्म से 8 माइनस 4 इट इज 4. अब आपको आगे कुछ कैलकुलेट करना चाहिए क्या? जब ये दोनों ही सेम नहीं आ रहे तो आगे आके क्या करेगा? कॉमन डिफरेंस तो यहीं से पता हो गया. सो आप बोलोगे सर t2 माइनस t1 डज नॉट इक्वल टू t3 माइनस t2. व्हाई? सिंस 2 डज नॉट इक्वल टू 4, सो इट इज नॉट इन AP. लाइक दी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको प्रोग्रेशन फॉर्म्ड करनी पड़ी. यहां आपको ऑलरेडी प्रोग्रेशन गिवन है, बट we want to check whether the given progression is arithmetic progression or not. So how we will check? We have to find the difference of consecutive terms. If the difference is same, then it will be an AP, otherwise not. Got it? Try to solve the remaining one. 2, 5 by 2, 3, 7 by 2. Second check करिए. लिखिए क्वेश्चन, मैं वेट कर रहा हूं. आप लिखें और चेक करें. 2, 5 by 2, 3. 2, 5 by 2, then 3, 7 by 2. 2 में क्या ऐड होगा कि 5 by 2 आएगा जी? मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. पढ़ने वाले बच्चे ओरल कर लेते हैं बच्चों. 2 में यदि 5 by 2 आ रहा है, 5 by 2 मीन्स 2 and half, दैट इज हाफ ऐड होगा. और 5 by 2 में हाफ ऐड करोगे तो 6 by 2 आएगा. सी t2 माइनस t1, 5 by 2 माइनस 2, दैट इज 5 माइनस 4 by 2, दैट इज 1 by 2. Then C t3 minus t2, third term minus second term. So it is 3 minus 5 by 2, that is 6 minus 5, 1 by 2. And so on. t4 minus t3, 7 by 2 minus 3, that is 1 by 2. LCM ले लिए. आप चेक कर सकते हैं, ओरल 2 से ऐड करिएगा, चेक कर लीजिए. 1 by 2 ऐड करिए, 5 by 2. 5 by 2 plus 1 by 2, that is 6 by 2. 6 by 2 plus 1 by 2, that is 7 by 2. 6 by 2 को मैं क्या 3 लिख सकता हूं. So it is an AP with first term 2 and common difference 1 by 2. Yes, it is an AP with first term 2 and common difference 1 by 2. Now, according to your question, you want to write how many terms? 3 more terms. 3 more terms. So how we will write? See. Then, first term था आपका 2. 2 में 1 by 2 ऐड किया तो क्या आया? 5 by 2. 5 by 2 में 1 by 2 ऐड करो 6 by 2. 6 by 2 में 1 by 2 ऐड करो 7 by 2. फिर 8 by 2. फिर 9 by 2. फिर 10 by 2. 1 by 2 ऐड करते गए. अब ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, then ये 5 हो जाएगा. So 3 more terms हो गई and so on. Got it? ऐसे ही आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं. There is an interesting question of the exercise. आपको क्वेश्चन नंबर 5th देखना है जी. इसी का 5th क्वेश्चन देखो. 3rd आपसे आ जाएगा, 4th आ जाएगा. 5th वाला देखिए. What is the 5th problem of this problem? 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2. See, obviously, यदि आप इसको ऑब्जर्व करें तो इसमें क्या ऐड हुआ है? रूट 2 ऐड हुआ. 3 था, एक रैशनल है, एक इरैशनल. अनलाइक टर्म से तो ऐड तो होंगी नहीं, तो 3 प्लस रूट 2 ऐसे ही रहेगा. फिर इसमें रूट 2 ऐड करिए तो 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, दैट इज रूट 2 प्लस रूट 2 2 रूट 2. अब 3 प्लस 2 रूट 2 में अगेन आपने ऐड कर दिया क्या?
root 2. So it is in AP. Yes, it is in AP with first term 3 and common difference क्या दिख रहा है जी? 3 root 2 से root 3 minus 1 means क्या आया? root 2 आया. What are the next terms? Next 3 terms क्या होंगी? 3 complete AP लिख देता हूं. 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2. Next क्या आएगा डियर? 3 plus 5 root 2, 3 plus 6 and so on. So how you will write the next terms? You understand? Clear? Now see a problem. Generally they will ask such type of question in examination. डेसिमल वाला आपसे आ जाएगा, अभी आपने डिस्कस कर लिया है. सीधी क्वेश्चन नंबर 12 है. यस, क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी इंटरेस्टिंग सर. 12th एंड 13th. 12th वाला रीड करें पहले. root 2, root 8, root 18, root 32. See this problem. My dear children, root 2 is as it is. You know, root 8, it may be written as 2 into 2 into 2. Root 18, it is written as 3 into 3 into 2. Root 32, that is 4 into 4 into 2. Simplification कर लिया. आपको याद है स्क्वायर रूट ऑफ a square, that is a into a is 8. याद आया? वो क्लास 8 9th के दिन याद करिए. यहां जो 2 into 2 का स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? 2 होगा. मीन्स रूट 2 एज इट इज, ये क्या हो जाएगा? 2 रूट 2. दिस 2 इज विदाउट पेयर. तो ये वाला पेयर जो था वो तो बाहर आ गया, ये रह गया जी. इधर क्या होगा बच्चों? ये आएगा 3 रूट 2, ये 4 रूट 2. अब आप देखें सर, सिंप्लीफिकेशन करने से आपको दिखने लग गया इसमें रूट 2 ऐड करने से 2 रूट 2. एक्चुअली ये रूट 2 है. ये क्या है जी? रूट 2 प्लस रूट 2. ये क्या है? 2 रूट 2 प्लस रूट 2. ये क्या है? 3 रूट 2 प्लस रूट 2. प्रीवियस टर्म में सेम नंबर ऐड हो रहा है. प्रीवियस टर्म यहां फर्स्ट टर्म था रूट 2, सेकंड टर्म जनरेट करने के लिए दिस टर्म प्लस रूट 2, थर्ड टर्म जनरेट करने के लिए सेकंड टर्म प्लस रूट 2, देन फोर्थ टर्म जनरेट करने के लिए थर्ड टर्म प्लस रूट 2. सो इट इज एन एपी. यस, इट इज एन एपी. यस, इट इज एन एपी with first term is root 2 and common difference is also root 2. So what are the next 3 terms? Next 3 terms complete लिख देता हूँ. root 2, 2 root 2, 3 root 2, 4 root 2. Next root क्या आएगी? 5 root 2, 6 root 2, 7 root 2 and so on. It may be written as जिस फॉर्म में given था root 2, root 8, root 18, root 32. Then ये क्या आएगा? 50. ये क्या आएगा? 72. ये कितना आएगा? 98. 7 7 या 49 into 2, 6 6 या 36 into 2, 5 5 या 25 into 2 रूट के अंदर लिख दिए. इस फॉर्म में लिख दिए. इस फॉर्म में ही छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम. सिमिलरली यू ट्राई टू सॉल्व दी 13th वाला देखिए. root 3, root 6, whether it is an AP. 13 वाला थिंकिंग करिए, ट्राई करिए इसी फॉर्म में लिखने का. ये क्वेश्चन नंबर 12 अक्सर पूछा जाता है डियर चिल्ड्रन. याद रखना 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है. 13 क्या है जी? रूट 3, रूट 6, root 9, root 12. अब देखो जी रूट 3, इसको आप फैक्टराइज करोगे तो 2 into 3, देयर इज नो पेयर. इट इज रूट 3 into रूट 3. दिस इज 2 into 3. So it is root 3. What
इट रिमेन्स √6, पेयर नहीं है, इट इज 3, इट इज 2√3। अब आप इसमें कुछ भी ऐड करिए, √2 में कुछ भी ऐड करिए, क्या आएगा? √6 नहीं ला सकते आप। √2 से √6 जनरेट करने के लिए कुछ ऐड करेंगे, √4 ऐड नहीं कर सकते, ऐसा मत बोल दीजिएगा। बोले √2 में √4 ऐड कर दिया, ऐड नहीं करेंगे, ये अनलाइक क्वांटिटी हो जाएंगी। एक रैशनल है, एक इररेशनल है, ये रैशनल है और ये ऐड ही नहीं होगी। मींस दिस इज नॉट एन एपी। व्हाई इट इज नॉट एन एपी? कैन यू टेल मी? √6 minus √2 is not equal to 3 minus √6. Got it? So ये AP नहीं है. Similarly, you try the remaining one. So these are the questions. Dear children, it is very easy exercise. If you solve the problem, then if you take pen and copy, notebook, and try to solve the problem with your own efforts, then you will be solved. This is the way of solution. You want to solve the exercise, then you remember, आपको जैसे बताया गया वैसी प्रैक्टिस आप करेंगे. Now we start the exercise 5.2. 5.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो हमने आज स्टार्ट किया क्लास, आपसे फॉर्मूला डिस्कस किया. व्हाट इज द nth टर्म ऑफ एपी? एपी की nth टर्म का क्या फॉर्मूला है डियर? यस, a प्लस n minus 1 into d. nth टर्म ऑफ द एपी, an या tn, a प्लस n minus 1 into d, where a is first term of the AP and what is d? Common difference. How we will opt? अभी तक आपने इतने क्वेश्चन किए, उसमें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, एंड सो ऑन. On the basis of this is the basic formula involved in exercise 5.2. Now we will start exercise 5.2. See the first question. There is a table. In this table, there are 4 quantities are given. And see in this formula how many quantities are there. How many quantities in this relation are used? A n first, A, n and D. आपको A n, D. Out of these 4, any 3 are given. A n, D, n. उसने ऑर्डर लिखा है ए डी एन एन ए एन. यहां उसने ए लिख दिया है, यहां डी लिख दिया है, यहां ए एन लिख दिया है. इसमें आपको एनी 3 आर गिवन. फोर्थ आपको इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके फाइंड करनी. यू अंडरस्टैंड? सी दी फर्स्ट वन. क्या लिखा जी? फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या लिखा है? A equal to 7. ए के कॉलम में आपको 7 दे दिया जी, इधर 7 फिल कर दिया, मतलब ए का वैल्यू 7 है जी. एंड सेकेंड कॉलम में क्या लिखा? 3. That is the value of D is 3. What is n? 8. A 7 given है, D 3 given है, n 8 given है. This is the relation of all 4. So use this relation. You know, A n आपको निकालना है. A n मतलब क्या सर? कौन से नंबर का टर्म? 8. भाई n का वैल्यू 8 है तो 8 नंबर का टर्म चाहिए. क्या आएगा? a प्लस, इस बार फॉर्मूले में रख दीजिए, 8 माइनस 1 इंटू डे. दैट इज a का वैल्यू है कितना? 7. 7 इंटू डे. व्हाट इज दी? 3. इसको सॉल्व कर दीजिए. 7 प्लस 21 दैट इज 28. फिल हो गया. सो एनी 3 आर गिविंग, fourth one is unknown. With the help of this formula, you have to find the remaining one. मैंने फर्स्ट सॉल्व करके दिखाया. Similarly, you try to solve the second, third, fourth. ट्राई करिए, सॉल्व करिए. सेकेंड में आपको D अननोन है, आपको D फाइंड करना है. यस, मैं सॉल्व करके दिखाऊं. एक और कोई सॉल्व कर लेते हैं. Second,
What is the value of A? minus 18. Minus 18. Value of D? It is unknown. Unknown. Value of N? 10. 10. Value of nth term? 0. 0. Then you are applying the formula An equal to A plus N minus 1 into D. That is N का वैल्यू आपको 0 दिया है. फर्स्ट टर्म minus 18, N का वैल्यू 10 minus 1 into D. मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले में जो जो नोन वैल्यूज थी वो फिल कर दी. N equal to A plus N minus 1 into D. You know this relation. What is the value of An according to your question? 0. तो An की जगह 0 रिप्लेस कर दिया. What is the value of A? Minus 18 plus N minus 1, that is 10 minus 1 into D. अभी इस minus 18 को यहाँ शिफ्ट कर लीजिए. क्या होगा जी? 0 plus 18 क्या आएगा? 0. 18. Yes. So 0 plus 18. 18 equal to 10 minus 1, that is 9D. So what is the value of D? 9 से डिवाइड करिएगा. हमारे बच्चे 18 minus 9 लिख देते हैं. ये 9 से डिवाइड करिएगा. सो 18 अपॉन 9 इक्वल टू D. सो D का वैल्यू क्या आया? 2 आया. क्लियर जी? सो इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड you have to fill the value of D is 2. Similarly you are able to solve the remaining questions. बनेंगे क्या? कॉपी पर सॉल्व करिए. थर्ड करिए, फोर्थ करिए, फिफ्थ करिए और करते चले जाइए. फिफ्थ तक हो गया. नाउ सी दी क्वेश्चन नंबर सेकेंड. चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग जस्टिफाइड 38th टर्म. सेम प्रॉब्लम जैसे आपने फर्स्ट किया वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं. यू नो चिल्ड्रन, अभी 1 मार्क्स में शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने लग गए जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिखने हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 30th टर्म. 30th term of the AP 10, 7, 4 and so on is 10, 7, 4 एंड सो ऑन. आपको इसकी 30th टर्म बतानी है जी. ये एपी है. ए इक्वल टू क्या है जी? 10. डी क्या होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. 7 माइनस 10 क्या आएगा जी? -3. अब अपने को 30th टर्म चाहिए. यू नो ए प्लस 30 माइनस 1 डी. क्यों सर? एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले को यूज कर लिया. सो इट इज ए इज 10, 30 minus 1, that is 29. What is D? -3. So 10 minus 87. बहुत मस्त लगाइएगा. यहां बहुत गड़बड़ करते हैं आप लोग. बहुत सारे बच्चे इसको 39 into -3 कर लेते हैं. फर्स्ट यू मल्टीप्लाइंग दिस. याद है? बहुत मस्त. ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. तो पहले यहां मल्टीप्लिकेशन होगा फिर एडिशन होगा ना. 29 3 87 प्लस माइनस का प्रोडक्ट माइनस 10 माइनस 87, दैट इज सी. किस आंसर में आपको -77 दिया है? option C. सी. दैट इज आंसर सी इज करेक्ट. सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व दी क्वेश्चन नंबर सेकेंड. सेकेंड का सेकेंड आप कर लेंगे. ये आपका असाइनमेंट है, ये करना है. मैं कॉपी पर चेक करूंगा. मैं अपनी क्लास के बच्चों का तो करूंगा. याद रखना, जब whenever I have the regular class, then I will ask you where is the question number second. Similarly, आप अपने जो भी हमारे साथी लोग हैं, साथियों को दिखाइएगा कि देखिए सर हमने ये सॉल्व किया था. क्वेश्चन सॉल्व करके आप दिखाओगे. नाउ नेक्स्ट very important concept, third problem. How you will find the unknown value. थर्ड प्रॉब्लम में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या है? In the following APs, find the missing terms in the boxes. फर्स्ट 2 blank 26. You know they are in AP. My dear friend,
एपी की जो टर्म होती है वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d और दिया होता तो ए प्लस 3d यही होती है। What is the value of a here? 2. What is the value of a plus 2d here? 26. आप बोलोगे सर a plus d equal to box, वो तो अननोन है, वही तो फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, इस a की जगह 2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो 2 plus 2d equal to 26. Then 2d equal to 26 minus 2, that is 24. What is the value of d? 12. d क्या है जी? That is the second term will be 14. 2 ये था, 12 ऐड होगा, मीन्स आपका जो अननोन क्वांटिटी है वो a प्लस दैट इज 2 प्लस 12 दैट इज क्या आया 14. क्लियर जी? If you have only 3 terms then you say sir first term plus last term divided by 2, ऐसा भी बोल सकते हैं. Sometime it may be written as like this, middle term is first term plus third term divided by 2. So 2 plus 26 by 2 that is 14. Both are correct. You got it? ये समझ आया? If you solve like this then you will solve each and every question. See the next one. Second. You understand this? Copy पर note करिए. Second question try करिए. लिखिए second. पहले ये लिख लीजिए. क्या किया मैंने? a plus d, a plus 2d. a का वैल्यू क्या? 2. a plus d unknown. a plus 2d is 26. There are two equation. जो ये a का वैल्यू 2 था वो a की जगह रिप्लेस कर दिया. इससे हमको सॉल्व करके इक्वेशन सॉल्व करके d मिल गया. a और d आ गया. a और d दोनों सब्स्टिट्यूट कर दिए. आपको अननोन क्वांटिटी मिल गई. Got it? Similarly, you have 4 terms in second problem. See the second one. Unknown box. Yes. 13. 13. Unknown box 3. We want to find C. What is this? AP लिख लो. ये A है. First term unknown है. A plus D क्या है जी? 13. ये क्या होगा बच्चे? A plus 2D. ये क्या होगा? A plus 3D. First term, second term, third term, fourth term. Two equations are there. Known को लिख लीजिए. A plus D कितना है जी? 13. A plus 3D कितना है जी? 3. दोनों known है. Second term that is A plus D. Fourth term A plus 3D. Both are given. इन दोनों को सॉल्व करके लाइक द लीनियर इक्वेशन याद करिए. वो फर्स्ट यूनिट linear equation, second unit linear equation in 2 variable. There are 4 type of methods. Graphical method, then algebraic method में 3 types आपने देखा. Substitution, elimination, cross multiplication method. कोई भी सबसे इजी कौन सा लगता? एलिमिनेशन लगा दीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. याद है सब्ट्रैक्ट करने का तरीका? हमको तो याद है. आपको साइन चेंज हुआ, सब्ट्रैक्ट किया, a माइनस ए कैंसिल हो गया जी. d माइनस 3d क्या आएगा? d माइनस 3d. 2d 3 का साइन आएगा दैट इज माइनस 2d. 13 माइनस 3 दैट इज 10. d इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 2 दैट इज माइनस 5. अब ये जो d आया माइनस 5 ये a प्लस d में रख दीजिए. नाउ a प्लस d दैट इज माइनस 5 इक्वल टू 13. So a equal to 13 plus 5 plus minus का प्रोडक्ट माइनस ट्रांसपोजिशन कर दिए. मीन्स a equal to क्या है जी? 18 आ गया. So now AP is क्या हुई सर? AP 18. 18 में माइनस 5 ऐड करिए. 13 में माइनस 5 ऐड करिए. Yes 8 में माइनस 5 ऐड करिए. So unknown numbers are, first unknown number is 18 and third one is 8. Got it? क्या ही समझ आ गया? Similarly, you have to solve the remaining one. इसके सारे आपसे आ जाएंगे. Now see the question number 4. Over. Remaining आप कर लेंगे. इसमें कोई डाउट है? Once again I want to repeat. First term unknown. Second term A plus D. AP का second term A plus D होगा. It is 13. Third term unknown. Fourth term is A plus 3D. A plus 3D is 3.
वी हैव टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशन. a and d हमने फाइंड किया. d आया -5, a आया 18. देन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर. a 18, फिर उसमें a प्लस d. 13 से 5 माइनस हुआ 13, 13 से 5 माइनस हुआ 8, 8 से 5 माइनस हुआ 3. चेक भी हो गया, 13 3 भी आ रहा है, मतलब हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है. गॉट इट? सिमिलरली यू सॉल्व द रिमेनिंग वन. CD question number 4. Which term of AP is 78? ये ऐसे ही है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया था. Which term of the AP is? 78. AP is 3, 8, 13, 18. 3, 8, 13, 18. 18. इसका कौन सा टर्म ऐसा है जो 78 है? माय डियर चिल्ड्रन, a का वैल्यू 3 है, d जो होगा 8 माइनस 3 दैट इज 5. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से 5 आ गया. अब आपको a n दिया है 78. याद करिए, ऐसे ही तो आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फिल किया है. इसमें हमें क्या फाइंड करना है? n फाइंड करना है. इसमें n अननोन है. सो विच रिलेशन इज यूजफुल हियर? You remember an equal to a plus n minus 1 into d. Substitute the values. Substitute करिए वैल्यू. an की जगह सब्स्टिट्यूट करिए 78. a की प्लेस पर 3, d की प्लेस पर 5 and try to solve the value. Find the value. ट्राई करिए, देखें क्या करते हैं आप. ट्राई करना है आपको. लिखिए इसको. यस, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इस रिलेशन में. देखें किसका पहले आता है. स्टार्ट करिए. यस, एन 78 लिखा होगा आपने. व्हाट इज ए? 3 लिखा होगा आपने. व्हाट इज एन? एन का वैल्यू क्या होगा? Unknown है. So you leave n as it is, n minus 1 into what is d? CD 5 into 5. Clear? इस 3 को शिफ्ट कर लीजिए. 78 minus 3 equal to n minus 1 into 5. 78 से 3 माइनस करिए. 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5. 5 से डिवाइड कर दीजिए. 5 कैंसिल हो गया. 5 से डिवाइड करिए. 5 1 जा 5, 5 जा 25 इक्वल टू n माइनस 1. माइनस 1 को यहां शिफ्ट कर दीजिए. 15 प्लस 1 इक्वल टू n. दैट इज n इक्वल टू क्या आया? 16. That is 16 term of that AP is 78. Understand? Similarly, you try to solve the remaining problem of the exercise. Find the number of terms in each of the AP. Question number आपको 5th में सेम क्वेश्चन गिवन है. 5th क्वेश्चन में सेम प्रॉब्लम गिवन है, उसमें भी आपको n फाइंड करना है. 6th चेक वेदर. अब इसमें एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है 6th में. ये हो गया. ऐसे ही आपको 5th के दोनों पार्ट करने हैं, उसमें n ही फाइंड करना है डियर. क्लियर? जो लास्ट में लिखा वो nth टर्म होगा. जैसे 5th के फर्स्ट में nth टर्म होगा 205. क्लियर? नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6. क्या है 6th क्वेश्चन में? चेक वेदर माइनस 150 है. सेम प्रॉब्लम है. माइनस 150 मैंने सपोज किया. यस, दिस इज द nth टर्म ऑफ दैट एपी. एपी क्या है? 11, 8, 5, 2. You want to check whether minus 150 is a term of this AP or not. So you say, sir,
A is 11, D is 8 minus 11, that is minus 3. Then nth term equal to A plus n minus 1 into D, minus 150 A 11 plus n minus 1 into D, minus 3. 11 को इधर लाइए, minus 150 minus 11, that is minus 161, n minus 1 into minus 3 is there. So minus 161 upon minus 3 equal to n minus 1. अब बेटे ये तो कैंसिल होने से रहा, क्या ये कैंसिल होगा? 161 is not divisible by 3, होगा क्या? आप माइनस 1 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 161 upon 3 plus 1 equal to n, that is 164 upon 3. अब ये डिवाइड करिए. अब नंबर ऑफ टर्म्स तो ऐसे हो नहीं सकता, नंबर ऑफ टर्म तो होल नंबर होगी, नेचुरल होगी. फिफ्थ टर्म है, सिक्स टर्म है, ऐसे थोड़ी होता है. 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12, 2 by 3. बोले सर 54 and 2 by 3 टर्म है. नंबर ऑफ टर्म तो ऐसे नहीं हो सकती, नंबर ऑफ टर्म तो इंटीरियर होगी ना. सो इट इज नॉट पॉसिबल. 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12, 2 रहेगा रिमेनिंग. सो इट इज नॉट पॉसिबल. क्या लिख देंगे सर? इट इज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स इट इज नॉट द टर्म ऑफ दैट एपी. सो एन की जब फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी या नेगेटिव आएगी तो आप बोल दोगे इट इज नॉट पॉसिबल. डियर चिल्ड्रन, दिस इज द फर्स्ट क्लास विथ यू. मेरी ये पहली क्लास आपके साथ थी. इसके पहले मेरे फ्रेंड्स लोग ने पढ़ाया. मैं बड़ा उत्सुक था आपको एक बार आपके सामने आने के लिए. I will try my level best to explain you how you will solve the problem. So please try to solve the remaining question of the exercise. Then if you have doubt in this exercise 5.2, then you will ask, you may ask, आप लिख दें चेक बॉक्स में, आप लिख देंगे कि सर ये क्वेश्चन डिस्कस करिए. So tomorrow we have my next class in which we discuss the sum of the n terms of AP and exercise 5.3 as well as 5.4 के कुछ मेन क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा. आप ट्राई करिएगा. डियर चिल्ड्रन, आई वांट टू शेयर, यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी. क्लास 10th का सिलेबस बहुत इजी है. आपको चांस मिल गया है, आप अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं, 100% मार्क्स ला सकते हैं. सो ट्राई टू गॉट योर डेस्टिनेशन. जय हिंद, जय भारत. फिर मिलते हैं. थैंक यू.